It's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience. Well, you're in a conservative Muslim country. You'd expect to be safe, right? Mostly, yes. Yeah. Yeah. And you didn't feel that in India? Oh, absolutely not. It's the way I've been treated in Pakistan. Even the second time I went back, it was way more hospitable, but it was literally the hospitality I've never experienced in my life. We are always respect our guests. The Pakistani. Why is everyone in Pakistan so kind? Because we are So beautiful people. Beautiful people. They have the love in our heart. Pakistan's the one country where, for me, it's number one in hospitality. Like, Americans have a really misunderstood idea of what Pakistan is like. I've been here for 2 days, and I've mostly been shopping in malls, eating at Western restaurants. And so I just feel like there's a very misunderstood idea of the more modern side of Pakistan. For the next 48 hours, I'm going to be comparing a day in India versus a day in Pakistan. Do a discount for me? No discount, big price. No. Your good price, fixed price. Fixed price. No discount. You have discount? No, fixed price. 3 meters. 200. floor. No, 400 fixed price. 300. No bargain. 350. No bargain. All right. 400. Assalamu alaikum. कुछ खाएंगे? I only speak a little Urdu. Eat? No, not yet. Not yet. I have maybe chai. चाय भी नहीं? Yeah. I pay. कर दिए. No, I pay. How much is it? दे दिए. Paid है. You paid already? You sneak. Hello guys, welcome back to Girl Reacts. Today we have amazing video, but before start our video, I will request if you are new on our channel, please subscribe. What? What? 여기 탄다고? 여기 탄다고? 여기 탄다고? 나 무서워. Only. One, please. Who are you? Yes. Who are you? Oh yeah. Just please, could you let me alone? 네, how much? 미친놈들아, 얘 진짜! Here's Taj Mahal. I'll show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Guys, I'm in Indore right now, and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here, and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. We are on the train in India right now, and it absolutely stinks. We are really struggling bad here. And now I have left India. Time for my final review. Don't go that place. Stay far, far away from India. Never go there. Never go there. I will never, ever go there ever again. They don't want you there. They do not want tourists, whatever they say. They do not want you there. इमेजिन करें दो ऐसे मुल्क जो कि सदियों तक एक साथ रहे, एक साथ आज़ाद हुए, और आज 77 साल के बाद दोनों के कल्चर के अंदर बेहद डिफरेंस आ चुका है। एक वो मुल्क है जहाँ पर टूरिस्ट किसी चीज़ का पैसा देने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी मेहमान समझकर इनसे कुछ नहीं लेता। तो दूसरी साइड पर तकरीबन हर शख्स, यानी टैक्सी से लेकर होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, दुकान वाला, सब उनको लूटने की कोशिश करते हैं। एक वो मुल्क है जिसका खाना और इसकी सफाई की क्वालिटी का टूरिस्ट खुद एतराफ़ करते हैं, तो दूसरी साइड के खानों, खसूसन हाइजीन का दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है। एक वो मुल्क है जहाँ के लोग इंतहाई फ्रेंडली, मेहमान नवाज और कंपैरेटिवली काफ़ी सिविक सेंस रखने वाले हैं कि पब्लिक के अंदर कैसे बिहेव करना है। तो दूसरी साइड पर बस बॉर्डर क्रॉस करते ही सोलो ट्रैवलर्स को, खसूसन फीमेल्स को हरासमेंट तक का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा पब्लिक के अंदर तो सिविक सेंस की बात ही ना करें। पर्सनल स्पेस और सिविक सेंस क्या होती है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से फीमेल टूरिस्ट दिल बर्दाश्ता होकर इस मुल्क को छोड़कर जाते हुए ये कहती हैं, हम बात कर रहे हैं दो हमसाया मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की। आज जहां पर एक तरफ इंडिया का इमेज ट्रैवलर्स और व्लॉगर्स के लिए बेहद बुरा और दिल खराश बन चुका है, तो दूसरी तरफ यही टूरिस्ट व्लॉगर्स पाकिस्तान और इसके कल्चर की तारीफें करते नहीं थकते। So we bought bottle of waters, and then he gave us sandwiches to take a picture, and then he said, keep them. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far, and my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. How much? No paisa, no money. It's okay. No. Why? He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? Thank you. How much?
Leave it, man. You are a guest, so. Oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. The hospitality of people here in Pakistan, honestly, you can eat for free. और मैं ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, बल्कि इस टॉपिक पर खुद कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी आवाज़ उठा चुके हैं कि इनकी हरकतों की वजह से इंडिया की दुनिया के अंदर किस कदर बदनामी हो रही है और इनको फॉरेन कंट्रीज के अंदर रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि आप खुद की रिसर्च करके देखें, यूट्यूब पर जाकर पाकिस्तानी टूरिस्ट स्कैम लिखें तो बहुत ही कम ना होने के बराबर वीडियोज़ आपको मिलेंगी। सबसे रिसेंट और वायरल वीडियो वो थी यानी 3 टार्जन वाली, जो कि कुछ ही देर के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। और दूसरा वाकया हाल ही में हुआ जब नेदरलैंड की एक सोलो ट्रैवलर से पर्सनल क्वेश्चन करने पर 3 पुलिस एहलकारों को मौके पर मुअत्तल कर दिया गया। आप खुद ये पैटर्न नोटिस करेंगे कि वही व्लॉगर जो कि पाकिस्तान की तारीफें करता नहीं थक रहा था, इंडिया के लिए उसके जज्बात बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। वही व्लॉगर जो कि इंडिया को डर्टी, अनहाइजीन, खतरनाक, गंदा और अनसेफ बता रहा होगा, वही सेम व्लॉगर आपको पाकिस्तान की तारीफें करता नजर आएगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो व्लॉगर पाकिस्तानी ऑडियंस को खुश करने के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये इसका हॉनेस्ट ओपिनियन है। क्योंकि लॉजिकली अगर उसको पैसा ही कमाना होता, अपना फ़ायदा ही देखना होता, तो वो इंडिया की झूठी तारीफें करता, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। और ज़्यादा ऑडियंस का मतलब है ज़्यादा व्यूज़, और ज़्यादा व्यूज़ का मतलब है ज़्यादा पैसे कमाने। अब इंडिया का ये मौजूदा इमेज एकदम से नहीं बना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के फैलने की वजह से टूरिस्ट की यूट्यूब वीडियोस ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का ये इमेज क्रिएट किया। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि वेस्ट के अंदर बैठे हुए वो लोग जो कि इंडिया घूमने आना चाहते हैं, वो इन्हीं वीडियोस के ज़रिए ये जज करते हैं कि उनको कहाँ पर जाना है। इन्हीं व्लॉगर्स की वीडियोस को देखकर वो अपना टूर प्लान करते हैं और उनको ये जज करने में आसान होता है कि उनको ट्रैवल कहाँ पर करना चाहिए। और पिछले 10 से 15 सालों के अंदर जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, यहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल तबाह होता जा रहा है। और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वेस्ट के कार्टून्स तक में इंडिया का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि इंडिया कहने को तो स्पिरिचुअल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर ना गॉड एग्जिस्ट करता है और ना ही सफाई। India, the most spiritual country in the world. God is not here. एक टाइम था कि इंडिया को स्पिरिचुअल हब ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था और लाखों फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आया करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पिछले 10 से 15 सालों के अंदर सब कुछ बदल दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियोस के अंदर गंदे खानों की वीडियोस जिनका दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है, और उसके अलावा गरीबी, गंदा एनवायरनमेंट, सफाई पर ध्यान ना देना, खासतौर पर यहाँ के लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी सूरत हाल और टूरिस्ट स्कैम ने आज इंडिया का इमेज दुनिया भर के अंदर बिल्कुल नेगेटिव बना दिया है। और यही वजह है कि आज कोई भी टूरिस्ट इंडिया जाने से पहले 100 बार सोचता है, और अगर कोई आ भी जाए तो वो बहुत पछताता है। और जब यही टूरिस्ट अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का यही इमेज क्रिएट होता है। जबकि पाकिस्तान में यहाँ पर इसका बिल्कुल उलट हो रहा है, क्योंकि इन फॉरेन ब्लॉगर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि अपना घर, अपना खाना, अपना सब कुछ मेहमानों के साथ शेयर करते हैं। और जब पाकिस्तान का ये इमेज पूरी दुनिया के अंदर जाता है तो इन 2 कंट्रीज़ के कंपैरिजन के अंदर फॉरेन टूरिस्ट की पहली पसंद पाकिस्तान ही बनता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इन टूरिस्ट को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी, उनका एहतराम होगा, उनकी पर्सनल स्पेस होगी, वो वहीं पर ही जाना पसंद करेंगे। एक मशहूर कैनेडियन सोलो ट्रैवलर रोजी गैब्रियल, जो कि एक फैमिली सोलो ट्रैवलर थी, पाकिस्तान घूमने के लिए आई थी और यहाँ की नेचुरल खूबसूरती, लोगों की मेहमान नवाजी, इज्जत और प्यार को देखकर इतना मुतासिर हुई कि ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी भी कर ली। सोशल मीडिया पर इमोशनल होकर रोते हुए अपनी स्टोरी शेयर करते हुए उसका कहना था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं पाकिस्तान विजिट करूंगी तो ना सिर्फ इस मुल्क से बल्कि यहाँ के लोगों से भी मुझे मोहब्बत हो जाएगी। यह मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो कहती है कि एक स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुश इखलाक थे कि मुझे अपने घर ले गए, जो कुछ भी मौजूद था मुझे ऑफर किया, और इनकी यही आदत मेरे दिल को छू गई। experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया में So guys, it was our video for today. I hope you enjoy our video. And if you want a suggestion about any video reaction, please comment below and subscribe for more video.